ਉਹਦੀ ਸਿਤਾਇਸ਼, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ तेरी सच्चाई ते तेरे पवित्र आत्मा दे नाल तेरी इबादत करना चाहता हूं। मैनू बसा कर खुदावंद तानू अपना जोर अपना बल देगा ओदे नाम दी स्तुति करन दे लिए। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन आखदा है जो मंगेगा सो पाएगा, जो ढूंढेगा उसनू मिल लभेगा अते जेड़ा खटखटाएगा ओदे लिए खोलिया जावेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहंदा तुसी एक्शन करना तो तानू फल मिलेगा। हालेलुया। इस करके ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ਦਾ वचन सच्चा ਤੇ ਸਥਿਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ।
खुश होंगे। हालेलुया, हत्थ उठा के हालेलुया। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਤੋਂ ਉੱਠ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੋਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਮ ਜਪਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਜਪਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਸੁਣਾ, ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਸੁਣਾ। ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਾਂ,
ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 15 ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ। प्रभु के वचन में हम पढ़ेंगे भजन सहायता उसका 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर के वचन में पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵ ਦਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਝਲਕਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਦਰ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਆ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਠੋਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਠੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ,
यसु तू मेरा साथ मेरा दिल मेरी जान यसु तू मेरा साथ मेरा दिल मेरी जान हुण तक जो कुछ भी मेरा है पिता तेरा है हुण तक जो कुछ भी मेरा है पिता तेरा है
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ खुदा ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ खुदा मेरी गलतियां बहुत है पर तेरी दया उसको उन्हें तो भी बड़ी है परमेश्वर असी दुआ करते हैं हालेलुया 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 दुआ करिए अपने बच्चों के लिए हालेलुया कि परमेश्वर उन्हें आने वाले दिनों च अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे मसा करिए उन्हें बच्चों को हालेलुया अपने जीवन के लिए दुआ करिए कि परमेश्वर मैं जीवन तेरे लिए जीना चाहना है ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਡਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर के रखिए अपनी प्रार्थनावां नूं रखिए अपने जीवन नूं रखिए कि परमेश्वर मैं तेरे च वधना चाहना है मैनूं सिखा कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी नूं स्कैड्यूल विच बदल सकां मैं हर काम नूं कर सकां जिहड़ियां जिम्मेवारियां तो दित्तियां मैं उन्हां नूं भी निभा सकां मैं अपने बच्चों की पालना पोषणा भी कर सकां मैं मेहनत भी कर सकां परमेश्वर मैं तेरे कमां नूं करन लई समय भी कढ सकां दुआ करिए हालेलुया परमेश्वर छुएगा तुहानूं हालेलुया खुदावंद दसेगा कि वो जिउंदा परमेश्वर है तुसीं गवाहियां दोगे कि वो जिउंदा परमेश्वर है हालेलुया परमेश्वर बदलाव दे द्वारा तुहानूं दसेगा क्योंकि यीशु मसीह दे नाम च बीमारियां जांदियां रहंदियां ने लोकी गुनाहां तो शिफा पाउंदे हालेलुया लोकी बीमारियां तो शिफा पाउंदे हैं परमेश्वर अपने वचन दे नाल लोकां दे जीवन नूं बदल दिंदा है हालेलुया तुसीं एक गवाही दोगे आउण वाले दिनां दे विच कि ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੈ ਵਕਤ ਪਾਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਸੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ दुआ करिए हालेलुया हर उस चीज के लिए छुइए आत्मा दे विच अपने कम्मां नूं अपने बच्चियां नूं हालेलुया छुइए उन्हां दी मानसिकता नूं हालेलुया उन्हां दे माइंड्स नूं छुइए हालेलुया परमेश्वर छुए उन्हां बच्चियां नूं हालेलुया इस्तेमाल करे अपने घर दे लिए अपने भवन दे लिए अपने कम्मां दे लिए हालेलुया छुइए हालेलुया दुआ करते रहिए परमेश्वर के आगे अपने मन को खोलिए उंडेल दिए अपनी परेशानियां नु ओदे अगे उंडेल दिए अपने दिल नु ओदे अगे चुकिए अपने सामने जिन्ने भी नबियां ने परमेश्वर की आवाज नु सुनिया ते अपने आप को झुकाया उन्होंने जिन्ने भी लोगों ने परमेश्वर ने वचन नु सुनिया जो वचन उन्हें तक भेजा गया
परमेश्वर देख ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर बेदारी लेके आउंदा है उसके बाद हालेलुया दुआ करिए हालेलुया हालेलुया हाले हर चीज नहीं जेड़ी तोड़ी जिंदगी दे विच आ जेड़ी चीज कठिनाइयां पैदा करदी है तुहानू लगदा है कि ये जिंदगी दे विच कठिनाई आ ओनू परमेश्वर दे सामने रखिए परमेश्वर हर चीज नू बदलण दी ताकत रखदा है हालेलुया 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 धन्यवाद पिता जी हालेलुया सारे जने परमेश्वर दा धन्यवाद करिए अखां नूं बंद कर दे भाई हालेलुया हालेलुया परमेश्वर जी तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद होवे तुहाडे पवित्र आत्मा दे लई पिता परमेश्वर प्रभु जी तुहाडी शिक्षा दे लई पिता परमेश्वर जी तुहाडे वचन दे लई पिता परमेश्वर प्रभु जी तुहाडे समझाउण दे लई पिता परमेश्वर प्रभु जी ਅਸੀਂ ਬੇਅਕਲੇ ਆ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ नहीं समझते बहुत सारा समय पिता परमेश्वर प्रभु जी लेकिन ऐसी चाहते हैं कि तू सानू समझाए तू सानू बदले पिता परमेश्वर प्रभु जी तो जो असी तेरे नाम दे उत्ते जय पाउण वाले बणीए पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया असी तेरे नाल तेरे सज्जे हाथ बैठण दे योग बन सकीए पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी सारे ये प्रार्थनावां सुनन दे लई पिता परमेश्वर हालेलुया ये प्रार्थना मंगदे हैं प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन सब जन मिल के कहिए आमीन ऊंची आवाज नाल आमीन ऊंची आवाज नाल आमीन आमीन सारे जन बैठ जाइए आइए तो परमेश्वर के वचन सुनन जा रहे हैं अपनी अखां बंद करिए सिरां नूं झुकाइए तो मैं पास्टर बेंजामिन अगे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आउण और खुदा दास दे लई ते खुदावंद दे वचन दे लई दुआ करें हालेलुया 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 कितने लोग आज एक भुख प्यास खुदा दे घर विच लेके आए खुदावन तुसी मेरे नाल गल करो मैं तुहानू गल सुनना है तुसी मेरे नाल गल करो मैं तुहाडी गल सुनना है आज आप ध्यान जिहड़ा है मैं तुहानू कहूँगा कि खुदावन यीशु मसीह दे वाल अपना लाना है असी कमांगे तो साडे नाल गल करूगा असी सुनांगे तो सारे लोग फायदेमंद होएगा हालेलुया 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 कितने लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारियां लियाकत है बहुत सारियां लियाकत हैं ये सानू कभी भी महसूस नहीं करना ताकि असी लियाकत जड़ियां पाइया अपनी लियाकत के नाल पाइया जो असी ये सोच लेंगे लियाकत खुदा को पाइया असी अपन लियाकत के नाल पाइया नहीं समझे मेरी गल नूं फिर दसा एक बार जड़ियां खुदा ने सानू लियाकत दित्तियां गाउंदियां बजाउंदियां ये जो आप सेवा दे खिदमत में काम कर रहे हैं ये सब कुछ खुदा ने दित्तियां सानू हालेलुया आइए आप अपने अखां बंद करिए प्यारे सुभान बाप खुदा यीशु असी बहुत तुहाडे शुक्रिया खुदावन जिन्ना भी असी खुदा तुहाडा शुक्र कर सकीए उन्ना ही थोड़ा सा नहीं दिल दे हिम्मत दे खुदावन कि असी ज्यादा तो ज्यादा तुहाडा शुक्र कर सकीए आसमानी बाप चाहते हैं इस वक्त साढ़े सारे नाल अपने कलाम दे नाल गलबात कर तुहाडे बच्चे नूं
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਛੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਦੀ ਮਮੂਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਰੂਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੋ। ਪਾਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त मैं खास करूँगा तो राजू होंगे खुदा का कलाम जो है, जो खुदा ने मुझे देता है, पेश करेंगे। मेहरबानी करके हिल जोर थोड़ी जी कट रखनी चाहिए। बैठिए बच्चों, आप भी ध्यान दीजिए, आप भी ध्यान देना है। शुक्रिया थोड़ा सारे। थैंक यू पास्टर जी। मसीह यीशु आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। सो मेरा ईमान है कि आप सब अपने साथ अपनी बाइबल मुकद्दस लाए होंगे। लाए हैं जी? यस। तो आप तैयार हैं जी खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए? यहाँ जी। हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ ही नहीं आएगी जी, वरना बड़े ठंड लग रही है, मुझे लग रहा आपको। जब खुदा का कलाम खुलता है ना जी, उसके अंदर लिखा है वो रोशनी लेकर आता है। जब खुदा का कलाम खुलता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं, और गुनाहगार क्या पाते हैं? नजात पाते हैं, उधार पाते हैं। जब खुदा का कलाम खुलता है और अपना कलाम भेजकर लोगों को तबाही से क्या करता है? बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुदा का कलाम। सो आप जितना उसे गौर से सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, आप उतनी ज्यादा बरकत पाएंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि इसमें जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। सो जिनके पास बाइबल है वो खोलें, अगर आपके फोन में है फोन में भी खोलें, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट भी करें। पता है कई चीज़ें ऐसा नहीं होंगी असं भुल जाते हैं, अगर आपने उसको नोट किया होगा ना तो फिर आप उस पर दोबारा गौर कर सकते हैं। जो मैं आज बात करने जा रहा हूं, जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है खुदा की मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। हम अक्सर दुआ करते हैं कि तेरी नहीं, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। तेरी मर्जी पूरी हो। पर कर दें ऐसी अपनी मर्जी पूरी है, दावा कर दें ऐसी कि मेरी नहीं तेरी मर्जी। और कई ईमानदार कहते हैं कि खुदा की मर्जी कोई फरिश्ता ही आएगा तो मैनू दसेगा, या मैनू कोई ख्वाब आएगा, खुदा की मर्जी नहीं। पर आज हम खुदा के कलाम से इस बात की निशानदेही करेंगे कि खुदा की मर्जी कहीं और नहीं, इस बाइबल मुकद्दस में है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा की मर्जी का मुकाशवा है वो बाइबल मुकद्दस में है। एक ईमानदार को चाहिए कि उसे पढ़े, उसे सुने, ताकि उसकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी मिरास है, जो सबसे बड़ी विरासत है, जो सबसे बड़ी दौलत है एक ईमानदार की, वो ये है कि खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरी करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या है जी? एक ईमानदार की सबसे बड़ी ईमानदार की विरासत जो है, दौलत जो है, वो ये है कि अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करना। आमीन, आमीन। सो बाइबल को जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप उसे सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको खुदा की मर्जी का पता लगेगा। आमीन, आमीन। सो मेरे साथ रहना है, हिलना जुलना जरा कम करना, ध्यान खुदा के कलाम की तरफ रखना, ताकि हमें
खुदा की मर्जी का जो भेद है, जो मुकाशवा है, वो समझ आ सके। आमीन आमीन। सो निकाले मेरे साथ इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत। जिनके पास पेन है वो नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। इफिसियों 5वां बाब और उसकी 15वीं से 16वीं आयत तक गौर से सुनना है। पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम और उसकी 15वीं आयत में वो कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ये एक ईमानदार के लिए इनविटेशन है खुदा का। खुदा फरमाता है, इसलिए गौर से देखो कि किस तरह की चाल चलते हो। ये जो लफ्ज आया है ना, ध्यान से, बड़ा ताकतवर शब्द है ये, बड़े इसके मायने हैं। गौर से इस बात का मुतालिया करो, बड़ी बारीकी से इसकी जांच करो। किसे नहीं, अपनी जांच करो कि मैं किस तरह की चाल चलता हूं। मेरा सोचना क्या है, मेरा देखना क्या है, मैं किस तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं, मैं कितनी दुआ करता हूं, कितना खुदा के साथ वक्त गुजारता हूं, मेरी खुदा के साथ कितनी मुलाकात होती है, और खुदा मेरी जिंदगी में क्या चाहता है, और उसकी मर्जी को मैं जान सकूं ताकि मैं उसकी मर्जी को पूरा कर सकूं। सो पौलुस कहता है, इसलिए गौर से देखो कि कैसी चाल चलते हो। जो ध्यान आया ना, अंडरलाइन कर ले उसे। अपनी जांच करनी है, बारीकी से इंस्पेक्ट करना है योरसेल्फ कि मैं किस तरह का अपना जीवन जी रहा हूं, मेरी सोबतें कैसी हैं, मेरी संगति कैसी है, मैं किस तरह के लोगों के साथ अपना टाइम गुजारता हूं। आमीन आमीन। आगे सुनिए, निर्बुद्धियों के समान नहीं, यानी बेवकूफों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। नादानों की तरह नहीं, दानव बनना है, अकलमंद बनना है कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो एक बात मेरे खुदा ने मेरे मन में डाली कि इसका मुकाशवा क्या है, नादानों की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह, बुद्धिमान के समान चलो, अकलमंद की तरह। मत्ती की इंजील में लिखा है ना, जो कलाम को सुनता है, उसे ग्रहण करता है, वो किसके समान ठहरता है? बुद्धिमान, अकलमंद की तरह, बुद्धिमान की तरह। और अपना घर कहां बनाता है? चट्टान। तो जो सुनकर छोड़ भूल जाता है, तो वो अपना घर कहां बनाता है जी? रेत पे। तो वो कौन है? मूर्ख। मूर्ख है। इसका मतलब जो इंसान कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो दना है, अकलमंद है, वाइस पर्सन है। जिड़ा भूल जाता है तो वो किसके समान है? मूर्ख। इसलिए पौलुस कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान बुद्धिमान के समान चलो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। 16वीं आयत, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर यानी जो टाइम, अंडरलाइन कर ले इसे, जो तुझे मौका मिला, जो तुझे टाइम दिया गया, जो तुझे मौसम दिया गया, जो तुझे सीजन दिया गया, जो टाइम तुझे
तुझे बख्शा गया वो बहुमूल्य है। क्या है जी? बहुमूल्य है। बहुमूल्य है। एक ईमानदार को खुदा जो टाइम देता है वो उसका अकाउंटेबल है। खुदा उससे उसका हिसाब लेगा कि तू अपनी जिंदगी को, जो मैंने तुझे टाइम दिया था, तूने उस टाइम को किस तरह से गुजारा। क्या तूने उस टाइम में मेरी मर्जी को पूरा किया या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। दिन क्या है? बुरे हैं। टाइम को गनीमत जानो कि जो तुझे टाइम खुदा ने दिया है, तू कहीं ऐसा ना हो कि तू चर्च आकर सुनकर उसे भूल जाए और तुझे बुढ़ापे तक भी ये पता ना चले कि खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है। जब भूल जावांगे तो पता थोड़ा लगेगा। हालेलुया। आगे मैं बताऊंगा आपको। सो जो खुदा हमें जो टाइम देता है, जो मौसम देता है, सीजन देता है, वो बहुमूल्य है, कीमती है। उसे समझें, उसमें खुदा की मर्जी का मुकाशवा पूरा करें। आमीन आमीन। क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धियों ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की मर्जी क्या है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझो कि प्रभु की मर्जी क्या है। आमीन। हालेलुया। खुदा की मर्जी क्या है। अब मैं आपको 6 बातें बनाऊंगा, बुनियादी बातें, जिसमें खुदा की मर्जी है। हालेलुया। हालेलुया। नोट करें, पहली मर्जी, खुदा चाहता है कि हर एक इंसान क्या करे? नजात पाए। क्या पाए? साल्वेशन पाए। यीशु मसीह का इस दुनिया में तजस्सुम होना, रूप धारण करना या दीदारी होना, जीवन लेना, उसका मकसद क्या था? हम क्रिसमस मनाएंगे। यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो क्या था? कि हर इंसान क्या करे? नजात पाए। साल्वेशन पाए। हालेलुया। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हर इंसान क्या करे? निजात पाए। पहला तिमोथियस और उसका दूसरा बाब और उसकी 4 से 6 आयत, अगर कोई पढ़ सकता है तो मेरे लिए पढ़ दें, अगर पंजाबी में, ताकि दूसरे भी इसे समझ सके। मैं आपको हिंदी में इसके लिए बयान करूंगा। पहला तिमोथियस दूसरा बाब और उसकी 4 से 6 आयत। फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 4 and 5 6। ਕੋਈ ਜੀ। ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ। एक चीज भी ब्रदर, पहला तिमोथियस, जो ये चाहता है हाँ, कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। आमीन। देखा जी आपने, अभी आपके सामने हवाला पड़ा। वह ये चाहता है कि सब आदमियों का क्या हो? उद्धार हो और वे सच्चाई को भली भांति पहचान ले। दैट इज द विल ऑफ गॉड। ये खुदा की क्या है? मर्जी है कि हर इंसान तौबा करे और सच्चाई को जाने। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और आदमियों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो नंबर 1, खुदा की मर्जी क्या है? कि हर एक इंसान नजात पाए,
आजादी पाए। आमीन। आमीन। क्या तू चर्च आता है, तेरे लिए मिलियंस डॉलर का क्वेश्चन है, $1,000,000 का क्वेश्चन है। तू चर्च आता है, अच्छी बात है। तू कलाम सुनता है, अच्छी बात है। तू हदिया देता है, अच्छी बात है। तू चाय पिलाता है, अच्छी बात है। लंगर खिलाता है, अच्छी बात है। क्या तेरे लिए $1,000,000 का क्वेश्चन है कि तूने नजात पाई है या नहीं पाई है? क्योंकि खुदा की मर्जी यह है कि हर इंसान क्या पाए? नजात पाए। आमीन। आमीन। तेरे लिए $1,000,000 का क्वेश्चन है, पर ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ कि ਸਾਡੇ ਲਈ कुछ और हो जाए। तो मसीह ने साफ कहा, अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे कोई फायदा नहीं है जी? फायदा? अगर आप नजात नहीं पाई हुई तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि कलाम कहता है अगर आप सारी दुनिया हासिल कर लें, अगर अपनी जान का नुकसान उठाएं तो फिर क्या फायदा है? हालेलुया। अगर आप चर्च में आते हैं, कलाम सुनते हैं, इबादत करते हैं, यही काफी नहीं। अच्छी बात है आप करते हैं, पर क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप नजात पाए हुए हैं? यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, वो सब काम करता था। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, जब तक तू नहीं, क्या कहा जी? नए सिरे से जन्म नहीं ले, तू खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है? हमें नया जीवन पाना है और नजात पानी है, ताकि हम खुदा की बादशाही में जा सके। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर आज खुदा से कहें, अच्छा नजात मिलती कैसे है? सवाल, अब नजात मिलती कैसे है? सबसे पहले ये एहसास होता है इंसान के अंदर कि मैं अधूरा हूं, मैं गुनाहगार हूं। जैसे हम गाते हैं ना, दाऊद गीत गाता, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी मां। इसका मतलब क्या हो गया? हम गुनाह में पैदा हुए हैं। हम किस में पैदा हुए हैं जी? गुनाह में, और गुनाह की मजदूरी मौत है। आदमी के अंदर ये एहसास होता है कि मैं गुनाह में पैदा हुआ हूं, मैं अधूरा हूं, मैं खुदा के बिना अधूरा हूं। उसकी जिंदगी, उसका जो साल्वेशन है, उसकी मुक्ति मुझे चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए तो जिस्म हुआ, देहधारी हुआ, अपना तकत छोड़ के जमीन पर आ गया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए नाश ना हो और हमेशा की क्या पाए? जिंदगी पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैंने वो जिंदगी पाई है या नहीं पाई है? हालेलुया। हालेलुया। तेरे लिए क्वेश्चन है $1,000,000 का कि मैं वो जिंदगी पा चुका हूं या नहीं पा चुका हूं। अगर नहीं पाई तो आज खुदा से कहें, क्योंकि खुदा इसीलिए दुनिया में आया। उसने मेरी और आपकी बीमारियों को, लानतों को, सब कुछ को, गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया और मनुष्य बना, फिर पाप बना और गुनाह बनकर वहां पर उसने कहा तमाम हुआ। उसने आपके और मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली, ताकि मैं और आप आजाद हो जाएं, मुक्ति पाकर खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। उसने सारे पाप गुनाह जो हमारे ऊपर आने थे, उसने हमारी अदालत अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। और ऐलान किया तमाम हुआ। हालेलुया। ताकि हम क्या पा सकें? नजात पा सकें। क्वेश्चन, पहला काम, पहली उसकी मर्जी। खुदा चाहता है कि हम क्या पाए? नजात पाए। उसका आने का मकसद यही था दुनिया में, कि हर एक इंसान निजात पाए। सवालिया निशान, अगर आप चर्च में आते हैं, कलाम सुनते हैं, यही काफी नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन, सवालिया निशान, क्या आप निजात पा चुके हैं? पहली मर्जी। और दूसरा पत्रस 3 बाब और उसकी 9 से 10 आयत, उसमें यूं लिखा है, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, उसमें यूं लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं,
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हैं, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा हमें टाइम देता है कि हम क्या करें, तौबा करें, मन फिराएं, अपने पापों का अंगीकार करें और उस पर ईमान लाएं और अपनी जिंदगी उस पर देकर खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएं। हालेलुया। खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। वो हमारे विषय में धीरज धरता है, हमें मौका देता है कि हम अपने गुनाहों का क्या करें, इकरार करें और उस पर ईमान लाएं, तौबा करें। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है, एक गुनाहगार जब जमीन पर अपने गुनाहों के तौबा करता है तो लिखा है आसमान पर फरिश्ते क्या करते हैं जी, खुशी मनाते हैं। हालेलुया। आसमान पर जश्न मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। एक जान अपनी गुनाहों से क्या कर दी, उसने तौबा कर ली और अपने गुनाहों को छोड़ दिया और आसमान पर फरिश्ते इस बात की क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। देख रहे हैं जी कैसा जश्न मनाया जाता है। लिखा है गुनाहगार जब इस धरती पर तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। आमीन, हालेलुया। ये पहली मर्जी है। खुदा हमारे विषय में धीरज धरता है, इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी अपने गुनाहों को छोड़े और अपना जीवन मुझे दे दे। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की पहली मर्जी है। अब दूसरी मर्जी, अगर मैं नहीं कंप्लीट कर सका तो उसे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने 6 बातें, बुनियादी बातें लिखी हैं। पहली मर्जी क्या जी, याद रखना की मर्जी है जी, खुदा चाहता है कि हम तौबा करें, अब मन फिराएं और अपनी जिंदगी उसे दे दें। आमीन, आमीन। नंबर 2, इफिसियों का खत, अभी जो हम हवाला पढ़ रहे थे उसी का 5वां बाब और उसकी 18वीं। मुझे लगता 2 या 3 मैं इसे कवर कर सकूंगा। इफिसियों 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, इफिसियों 5:18, दूसरी मर्जी, और दाखलत से मतवाले ना बनो और शराब से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे क्या होता है, लुचपन। लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जाओ। किससे होते जाओ, आत्मा। आत्मा से भरते जाओ, शराब से मतवाले ना हो। मैं पिछले दिनों कई कलाम सुना रहा था, मैंने बोला था कि मसीही इस गल का ऐलान कर दिया, दावा कर दिया, कलाम चो दस दिया, यीशु मसीह ने भी तो मैं बनाई सी, ऐसे ही है। शराब यीशु मसीह ने मैच नहीं बनाई थी, तो वो इसी बात से पी रहे हैं, वो अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं, वो खुदा की मर्जी नहीं कर रहे। कलाम में सच्चाई फरमाती है, दाखलत से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, आत्मा से भरते जाओ। हालेलुया, कितने ना भरते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब है हर समय खुदा के जलाल से भरते रहें। आप चाहे अंदर हैं, आप चाहे जॉब पर हैं, आप चाहे घर पर हैं, आप कहीं बाहर हैं, खुदा का इन्फ्लुएंस, वो जो पवित्र आत्मा की अभिषेक है, वो आपकी जिंदगी को हमेशा उसकी छाया आप पर रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मा से भरे रहें। आमीन, आमीन। दाखलत से मतवाले ना बनो। और आत्मा से भरते जाओ। आमीन, आमीन। अब देखें, हर आदमी के पास फोन है। मैंने नहीं पता ਤੁਹਾਡਾ टाइम की है, अब उसे चार्ज करते हैं या नहीं, मैंने नहीं पता तुम सवेरे करते हैं कि शाम को करते हैं, करते हो जी नहीं। हाँ जी। इसी तरह अगर नहीं करेंगे तो बैटरी डाउन। इसी तरह एक ईमानदार की भी बैटरी है, अगर वो चार्ज नहीं
होगी, आत्मा से नहीं भरेगी तो फिर वो डाउन हो जाएगी। अरे प्लग इन हो तो तेरी रूह का मोबाइल जो है हमेशा क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। जस्ट प्लग इन हो आसमान से, हालेलुया, जहां पर कभी लोड शेडिंग नहीं होती, 24 आवर खुदा का अभिषेक आप पर रहेगा। जस्ट प्लग इन हो ते जिन्ने मर्जी कांटे आसमान ते फिट करी जा, हालेलुया, हालेलुया। जिन्ने मर्जी कांटे आसमान ते फिट करी जा, जो मर्जी मंगी ला, जस्ट प्लग इन हो ते तेरी आत्मा दा मोबाइल हमेशा चार्ज रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। प्लग इन होना है। ये चीज बरकत भी है, लानत भी है। गौर से सुनिए, ये चीज बरकत भी है, लानत भी है। डिपेंड्स ऑन योर फिंगर, आप उसे कहां क्लिक करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। डिपेंड्स, ये आपकी उंगली पर निर्भर करता है कि कहां पर जाकर इसे क्लिक करते हैं। आप जिस अभिषेक के नीचे हैं, जिस इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, वो तेरे जहन को कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आत्मा से भरे हैं तो आप अच्छी चीजों पर गौर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा जेड़ा सी ना, मूसा थोड़ी देर ही जांदा सी खुदा नाल, ते जो वापस आंदा सी ते ओदा चेहरा नूर से भरा होता था। हालेलुया, हालेलुया। ये है इन्फ्लुएंस, ये है उसकी हजूरी का मजा। आप, मुझे नहीं पता कि अपनी जिंदगी कहां गुजार रहे हैं, आप किस चीज से मतवाले हो रहे हैं, आत्मा से भर रहे हैं या किसी और चीज से भर रहे हैं। अरे एक ऐसी मैं है जो आसमानी है, जिससे आप भरे रहेंगे। हालेलुया, ओ ऐसी मैं है जिससे आदमी बेहोश नहीं हुंदा ते कई हुंदा होश च आ जांदा है। आमीन, आमीन, आमीन। वो ऐसी मैं है, वो ऐसा नशा है, वो ऐसी सामर्थ है जिससे नाल आदमी बेहोश नहीं हुंदा बल्कि होश में आ जाता है। जिस्मानी शराब पी के ना फिर घंटे के बाद जेडे नशे च हुंदे ते असें कहे की कहंदे मैं उत्थे ही हां, ऐसे ही होंदा जी कि मैं उत्थे ही हां। अगर आप आसमानी मैं पिएंगे, आप खुदा की आत्मा से भरे रहेंगे, तो वो ऐसी मैं है, कलाम में लिखा है ते ये दाखरत से भी बेहतर है, तेरा इश्क, तेरी मोहब्बत दाखरत से भी बेहतर है, शराब से भी बेहतर है। आमीन, आमीन। तेरी मोहब्बत, तेरी प्रेम जो दाखरत शराब से भी बेहतर है। किससे बेहतर है? शराब से। आमीन, आमीन। तो किससे मतवाले होना है अभी? खुदा के अभिषेक से, शराब से नहीं। इससे लुचपन पैदा होता है। तो फिर की मर्जी है खुदा दी? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दूसरी मर्जी, नंबर 1, खुदा चाहता है कि असी पाए निजात कौन? दूसरा, हम शराब से मतवाले ना हो बल्कि आत्मा से भरते जाएं। हालेलुया। मुझे लगता है टाइम हो गया, मैं तीसरी मर्जी को पूरा करके इसको खत्म कर दूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत। आराम से निकालें तीसरी मर्जी। उसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी यह है। देख रहे हूं, एक तो वड्डी घोर केड़ी गल होवे, इससे बड़ी क्या बात होगी? खुदा साफ तो कह रहा है। क्या कह रहा है जी? परमेश्वर की मर्जी यह है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। क्या बनो जी? पवित्र बनो। खुदा की मर्जी यह है कि तुसी की बनो? पवित्र। पाक बनो। क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है, वो नूर है, वो रोशनी है, वो पाक है, वो जलाली है, वो मुकद्दस है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बुलाने वाला क्या है जी? पवित्र पाक है। तो खुदा क्या कहता है कि तुसी हम सब क्या बने? पाक बने। अर्थात किससे? किससे बचे रहो? व्यभिचार से।
जिनसी गुनाहों से अपने आप को बचाए रहो, दुनिया के लिए नो और खुदा के लिए यस। क्या करो? खुदा कहता अपने आप को पाक बनाओ और व्यभिचार से बचे रहो। बचे रहो। ये जो जिनसी गुनाहों का एरिया है, सेट अपार्ट, अपने आप को अलग कर लें, अलग कर लें। अपनी आप चुने हुए लोग हैं, आप खुदा की कौम हैं। इस चीज से हटे जैसे यूसुफ हट गया था। हालेलुया, हालेलुया, वो भी गुनाह से हट गया था। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है पुराने आयत में, अगर तू गुनाह करता है तो क्या करता है? पाप करता है। तो नए यीशु मसीह ने उसे कंप्लीट किया। अगर कहता है, यीशु मसीह ने कहा अगर तूने औरत को बुरी निगाह से भी देख लिया तो तू गुनाह कर चुका। आमीन। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारी सोचों, हमारे देखने भी गुनाह है। इससे भी अपने आप को बचाए रहें। हालेलुया, हालेलुया। पाक बने, पवित्र बने। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 15 से 16वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, वैसे ही तुम भी क्या बनो? अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पाक बनो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता है आप सब पाक बने क्योंकि मैं पाक हूं। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। इसके साथ वार्निंग भी है, वार्निंग भी है। इब्रानिया 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा। 3 मर्जी मैं इसे कवर कर चुका हूं, करने वाला हूं। इब्रानिया 12 बाब और उसकी 14वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रहो और उस पाकीज़गी के खोजी हो जिसके बिना कोई खुदा को कदापि ना देखेगा। गलतफहमी में ना रहे। खुदा का कलाम सच कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो, उस पाकीज़गी के खोजी हो जिसके बिना कोई खुदा को नहीं देख सकता। हालेलुया, यानी कि दूसरे लफ्जों में कहूं, नो होलीनेस, नो होली गॉड। ठीक है जी? हाँ जी। दूसरे लफ्जों में मैं कहूं तो इसके मायने ये है, नो होलीनेस, नो होली गॉड। अगर आपके अंदर पाकीज़गी नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आप उस पवित्र, उस पाक खुदा को कभी देख नहीं सकते। आमीन, आमीन। तो फिर खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है कि हम क्या बने? पाक बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है। आमीन, हालेलुया। टाइम हो चुका है, मैं इसको आगे नहीं कवर करूंगा। खुदा ने फिर मौका दिया तो फिर करूंगा। 3 बातें मैंने आज कवर की हैं। पहली क्या थी? मन फिराओ, तौबा करें। तौबा करें। सवाल हमारे लिए एक सवालिया निशान कि मैं चर्च आना, कलाम सुनना है, असि यही सोचते कि साडे लिए इनफ है। नो 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 नो, आप गलतफहमी ना रहे। क्योंकि खुदा ने निकुदुमस को कहा था, वो सारे काम करता था। निकुदुमस को खुदा ने कहा, जब तू नए सिरे से पैदा ना हुए तो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। आमीन, आमीन। दूसरा, आत्मा से बढ़ते जाओ। और किससे मतवाले होना है? आत्मा शराब से मतवाले नहीं होना है, इससे लुचपन पैदा होता है। आसमानी में जिसका नशा हो तो कोई देखे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नशा है वो बेहोश नहीं करती बल्कि होश में लेके आती है। आमीन। वो ऐसा नशा है, ऐसा जायका है, आदमी को बेहोश नहीं करता बल्कि होश में लेकर आता है। और नंबर 3, पाक बनो और अपने आप को जना से, व्यभिचार से बचाए रखो। खुदा की मर्जी मेरे लिए यही है।
आमीन। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आंखें बंद करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू हॉली स्पिरिट, धन्यवाद। हालेलुया, आंखें बंद कर लें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में आपने आज खुदा के कलाम को सुना है, अगर आपकी जिंदगी में ये कमियां हैं, तो आज खुदा से कहें हालेलुया, खुदा मैं इस बात का इकरार करता हूं, मैं इस बात का आज इकरार करता हूं कि मेरी जिंदगियों में तेरे कलाम की रोशनी ने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया है। हालेलुया। और मेरी जिंदगी में तेरी कलाम, तेरी मर्जी अहम हो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो मेरी विरासत है, मीरास है, तेरी मर्जी को पूरा करने को। हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट, धन्यवाद। हालेलुया, आंखें बंद करके रखें। हालेलुया, खुदा तेरे को और तेरे घराने पर अपनी आशीष डालेगा। हालेलुया, तेरे हर पाप को, तेरे हर गुनाह को, तेरी हर तकलीफ को, तेरी हर परेशानी को वो अपने पाक लहू से धोकर साफ कर देगा। हालेलुया, आज अपना इकरार करें, क्योंकि लिखा है जो अपने गुनाहों को मानकर छोड़ता है, खुदा फरमाता है मैं उस पर अपना फजल करता हूं। हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, तू दे दुनिया गल्ला जाएगा। की मंगा तेरे कोलों यीशु जी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ
आओ सारे जने अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। पिता परमेश्वर जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ परमेश्वर प्रभु जी खुदावन जी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ परमेश्वर प्रभु खुदावन जी अपनी स्वर्ग ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ खुदावन जी खुदावन कोई घाट इन्हां दे घर विच ना आण पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी बल्कि अपने खजाने दे विचों इन्हां दियां सारियां जरूरतां नूं पूरा करना पिता परमेश्वर प्रभु खुदावन तेरियां बरकत दी बौछार दे नाल खुदावन ये अपने आप नूं तुहाडे विच बोया होया समझण पिता पाउण है पिता परमेश्वर प्रभु जी इन्हां पूरे परिवारां नूं तुहाडे हत्थां दे विच सौंप दिंदे आ खुदावन जी उन्हां दी सेहत तंदुरुस्ती दे लई तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करदे आ पिता परमेश्वर प्रभु हर समय संभाल के रखिया आज दे तक आज दा दिन भी दिखाया पिता उस दे लई भी तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करदे आ इस सारी मंडली नूं खुदावन जी इस सारी कलीसिया नूं इस नजराने नूं तुहाडे चरणां दे विच रखदे आ पिता ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ हालेलुया इस तरह खड़े रहिए मैं पास्टर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे हों और आखिरी प्रार्थना दे विच साडी अगुवाई करें हालेलुया हालेलुया खुदा की तारीफ करिए आज दे काम में आज भी खुदा ने हुई मैं इस गल का बड़ा ही खुश हुंदा है ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
मैनू मौका दवोगे जिन्हें भी अपने मसीह दे भैन भरा अब बड़ी खुशी वाली गल है। इस तो पहले कि आप दुआ नूं खत्म करिए जिन्हें भी छोटे बच्चे आ बड़ा दिल खुश होता है अगे आ जाइए इन अगे जाइए इन्होंने मूवी बनाइए इन्होंने आप दुआ कराएंगे। माँ प्यो नाल आ जाओ माँ प्यो नाल आ जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। ये साडी ताकत है मसीह दे विच जिहड़ी यीशु ने साडे वास्ते दित्ती है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तुहाडे वास्ते दुआ की जाएगी नाल ही आज के कलाम के मुताबिक आप की सीखिया हो सकता कल या अगले हफ्ते हो सकता तुहाडे कोल पूछा जाए या आज का पिछले हफ्ते का कलाम तुहाडे नाल किद्दां रहा है तुसीं अमल कर दिओ और नहीं अमल करते तो अमल करने की कोशिश करिए। अमलों के नाल साडे नवेड़े जिहड़े होने आ उसे किसी ने तुहाडी जात तुहाडा नाम नहीं पूछना ठीक है। किद्दां होने साडे नवेड़े अमलों के नाल कम्मां दे नाल जात के क्योंकि मसीह साडे कोलों यही मंगदा है। आइए आप दुआ करिए। खुदा बाप जी तुहाडा शुक्र हो तुहाडा शुक्र हो खुदा यीशु आज दी तुहाडी हजूरी रही इन्हां छोटे बच्चों ने भी खुदावन असीं तह दिल तो तुहाडे शुक्रिया है। यीशु तुहाडे कोलों दुआ करदे आ खुदावन इन्हां दे उत्ते रूह दा मसा हो खुदावन तुहाडा हाथ होवे इन्हां दी पालना पोषण कर खुदावन इन्हां नूं संभाल माँ बाप भी खुदा यीशु अपनी हिकमत दे इन्हां दी पालना पोषण तुहानूं खुदा यीशु तुहाडे लई कर सकन तुहाडे हत्थां विच सब कुछ सौंप दे। इन्हां नौजवानों लई खुदावन यीशु दी मसीह दे जिन्हें भी कलीसिया दे आप हाथ करिए खड़ा है हाथ खड़ा करिए जिसनों भी दुआ की जरूरत हैगी जिसनों दुआ की जरूरत हैगी जिसनों दुआ की जरूरत हैगी बाइबल में लिखा कि एक दूसरे ने की करो दुआ करो एक दूसरे ने आप की करनी है दुआ करनी जिहड़े साडे लागे खड़े आ जिहड़े साडे नाल खड़े आ एक दूसरे ने असी ये सीखना है खुदा के कलाम विचों। जरूरी नहीं कि तुम सोचो पास्टर साहबान साढ़े घर दे विच आउणगे ते ओही दुआ करनगे। पास्टर साहब नूं चिट्ठियां लिखण दी लोड़ नहीं है बाइबल विच किते भी लिखिया चिट्ठियां लिखो एक दूसरे नूं तुसीं दुआ करो खुदावन तुहाडी भी दुआ सुनदा हैगा तुहाडी भी दुआ सुनदा हैगा तुहाडी दुआ दे द्वारा भी एक दूसरे नूं साडे मसीह भैन भरावां नूं बरकत जिहड़ी मिलूगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई भी भैन भरा दुआ विच रहनुमाई कर सकदे तुहाडे विचों जी हाँ तुहाडे विचों कोई भी दुआ करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा खुदावंदा Yes, हम किसी को निकलने में लेकिन आपकी बात है आपका फजल आपका प्यार मेहमान है जो आपने जिंदा के जमीन में रखा और ये समय बख्शा कि हम आपके चरणों में आ सके उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपके चरणों में हम आए आप सब जनों को लेकर आए उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदावंदा। जितने भी जन आपके चरणों में इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर खुदावंदा जो अपनी आत्मा लेकर आए खुदावंदा जो कोई कष्ट आपके चरणों में खोला पिता परमेश्वर उन सब की प्रार्थना को सुन के आप उत्तर देने वाले हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम वापस अपने घर को जाएंगे खुदावंदा हमारी मदद और वही का जो वचन हमने सुना पिता उस पर चलने की समर्थ और शक्ति प्रदान करना खुदावंदा हम केवल सुनने वाले लेकिन उस पर चलने वाले उस पर अमल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर अपने हृदय में खुदावंदा बसाने वाले हो सके पिता परमेश्वर ताकि वचन हमारे मन में हमारे मुंह में हो पिता परमेश्वर और आपके नाम की महिमा आपके नाम की स्तुति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। बाकी समय को आपके मांगा दिया मीठे जलाले नाम से मांगते हैं आमीन।
आइए अपन दुआएं बंद करें। है हमारे बाप जो तू मानते हैं, तेरा नाम पाक माने जाए, तेरी बात आता हुए, तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी दी है, जमीन पे भी होवे, सारे रोज रोटी आसान दे, सारा दूसरा माफ कर दे, उसी तरह सारे दुश्मनों को माफ कर, सानू हमेशा में ना पा, बल्कि बुराइयों से बचा, कि बादशाह कुदरत और हमेशा ही तेरा है। आमीन।